This call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last few classes, we have considered many questions based on trigonometric formulas. So, quick glance at the formulas once again. Every day, I prefer to give 2 minutes at least to this so that you see the formulas every day, you revise, you learn them. These are your basic fundamental formulas. And very important, sine A plus sine B, sine A minus sine B type. Followed by double angle formulas for sine 2a, cos 2a, and tan 2a. The deduction using cos 2a, then we have sine a and cos a as it's appearing, specifically these two rules, followed by triple angle formulas. Let us now consider questions from the assignment. Consider this question: if sin x plus cos x is 1, first part I'm talking about, if sin x plus cos x is 1, what is the value of sine 2x? So we are given sine plus cos is 1. The basic idea is squaring both sides. Why? Next step will make it clear. So this would become sin x plus cos x ka whole square, and that is 1 ka square, which is 1 only. Let me open this square. This is a plus b ka whole square. Alright, so this is a square plus b square plus 2ab. 2ab. And that is equal to 1. Now, sine square plus cos square, it's 1. And remember, this is a direct formula. 2 sine x cos x is sine 2x. This is equal to 1. 1 से 1 कैंसल हो गया and sine 2x is 0. Your required answer. A simple straightforward one marker question. B part and C part are interlinked, so I am taking B part का hint and C is simple. So in B part क्या कह रहे हैं? Find the greatest value of sin x plus into cos x. So let me consider this question like not only greatest, say smallest also. So what is the greatest and smallest value of sin x cos x? For a sake of simplicity, let me call this as y. Sin x cos x is no formula. But if I divide and multiply this with 2, it will become sine 2x in the numerator. Now we all know sine 2x. Sine of any angle always lies between -1 to 1. So it is hardly matter 2x or 10x हो या 100x हो. Sine की value will lie between -1 to 1. ये इसकी रेंज हो जाती है. ग्राफिकली ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व. और अब मुझे एक्चुअल में इसको डिवाइड बाय 2 चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दीजिए थ्रू आउट. तो माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ टाइम्स sin 2x is less than equal to half. So clearly this would be the minimum value of our expression जो क्वेश्चन में पूछा था, and this would be the
मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट अगर सिर्फ पूछा होता तो 1/2 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। For any doubt, please always feel free to raise your concern, raise hand, unmute, write in chat box. There are many ways. So doubts आपके ही हैं, अगर वो रह गए तो you will be sufferer later on. देखिए जरा ध्यान से, समझना आप ही को है। सिंपल कंसेप्ट है और बट इसकी एप्लीकेशन बहुत और अलग अलग फॉर्म में हमें मिलने वाली है। एंड रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये जो चीज करी है 12th में भी ये सब कुछ चाहिए। Check out this question. Evaluate the following. Now, say A part, B part, wo clearly in homework. This is not a standard angle. 7 pi by 12 is not a standard angle. Means, as far as cos pi by 4 is concerned, I can use their standard values, 1 by root 2. But what about sine 7 pi by 12? Cos 7 pi by 12? For that, if you look at the expression carefully, यस, तो आप चेक करिए। इसे आप ठीक है वो पाई प्लस समथिंग वैसे सोचना शुरू कर दो, बट द सिंपल वे इज जो इसमें वर्क करेगा, इफ दिस इज से ए, दिस इज से बी, ये भी ए लिखा है, ये भी बी लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज आवर डायरेक्ट फार्मूला फॉर साइन ए माइनस बी। ए 7 pi by 12 था, B pi by 4 था। Let me just take the LCM and check out what happened. 12 हो गया यहाँ, 7 pi minus 3 pi, that would be 4 pi by 12, and that is sine pi by 3. Remember, sine pi by 3, 60 degrees, which is a standard root 3 by 2. So I'm not clear, can you show pi minus pi by 8 से आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? Similarly, this question देखते ही पहचान बन जाएगी। This is resembling to cos A cos B minus sin A sin B. A मैंने Sir, it is sin A plus B. which question? Sir, the previous one. हाँ, Sin A plus B. sin A plus B है, बीच में माइनस का साइन है, तो sin A cos B माइनस cos A sin B sin A माइनस B होता है। It is not sin A plus B. Check out the formula list. Okay, sir. I had a confusion. Sorry, sir. नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं है, बस वो डिस्कस करो, देखो कुछ ना कुछ गलती होगी, आगे नहीं होगी। चेक आउट दिस। कॉट एल्फा आपको दिया है हाफ, और एल्फा भी दिया है, किस क्वाड्रेंट में है एल्फा? एनीवन? पाई से 3 पाई बाय 2 रेफर टू विच क्वाड्रेंट? Third. दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है वो tan का होता है, और tan एंड cot आर पॉजिटिव, तो वो दिया ही हुआ है। नेक्स्ट देखा सीकेंट, और बीटा इज हेयर गिवन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस एंड सीकेंट उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा। Now we need to find the value of tan alpha plus beta. पहले एक बार हम लॉजिक लगाते हैं
कि व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली। तो tan अल्फा प्लस बीटा जो मुझे निकालना है वो क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। So I only need tan alpha and tan beta. अगर मुझे ये दोनों मिल जाएं, I will substitute their values in this formula and have my answer. तो अब मेरा फोकस है how I am going to get the value of tan alpha and then tan beta. Now cot alpha मुझे गिवन है 1/2, बस आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। आ गया tan अल्फा की वैल्यू फर्स्ट थिंग, तो tan अल्फा आ गया, ये मुझे मिल चुका है। अब जब हम बात करेंगे फॉर tan बीटा, tan बीटा के लिए देखिए सीकेंड बीटा गिवन था -5/3 और बीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखेंगे। नाउ tan कैसे निकालते हैं, tan square plus 1 यस, equals to secant. ये आपका 10th का ही फार्मूला आ गया। बस आप इसमें वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज -5/3 का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा वुड बी 25/9 -1 16/9 और इससे tan अल्फा एक्चुअल में आ जाएगा ±4/3। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं बीटा की, सॉरी अल्फा लिख दिया मैंने बीटा की जगह, ये यहाँ बीटा आएगा, प्लीज मेक द करेक्शन, दिस इज बीटा। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारी इक्वालिटी बीटा की आ गई थी। तो अगर tan बीटा 4 ±4/3 है, अब क्योंकि बीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan विल बी नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan बीटा मुझे लेना पड़ेगा -4/3। बस इसके बाद तो अब सिंपल है, रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हम यहाँ देख ही चुके थे, you just substitute the values, so tan alpha 2 है, tan बीटा -4/3 है। Take the LCM and simplify your required answer. A very similar questions you will find in NCERT, solved example में है। Mark your attendance, everyone. Check this out. tan थीटा आपको दिया हुआ है, find the value of this expression. So we need to find b cos 2 theta plus a sin 2 theta. Note carefully, cos 2 बीटा का 4 फार्मूलाज मुझे पता है, बट विच फार्मूला आई वुड यूज, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
1 plus tan square theta. Plus a times sin 2 theta. Recall again, list of formula आपके सामने ही है. sin 2 theta होता है 2 sin 2 theta का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. These are our basic formulas only. Why I am using these formulas? क्वेश्चन में मुझे tan theta given था. Now I will just substitute the value of tan theta as a by b. सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए value of tan theta by a by b, and the role of trigonometry is over. Now it is about taking LCM and simplifying. तो अब ये सिंपल अलजेब्रा आ चुकी है. तो कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क. मेन था यहाँ पर पहुंचना, और वो सिर्फ एक पहला स्टेप कि cos 2 theta and sin 2 theta, their formulas are required here. Please complete this in homework. LCM लेकर आराम से हो जाएगा. सेम LCM आ रहा है दोनों में. ओके, चेक आउट दिस क्वेश्चन. ये नेक्स्ट शीट पर है, यहाँ गलती से रह गया. यस, फाइंड द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. लेट मी कॉल दिस एज ए y. साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्रीज. अब आपसे सिर्फ साइन पूछा है. साइन का मतलब ये टोटल वैल्यू जो है साइन 100 प्लस कॉस 100 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है. दैट्स इट. आंसर क्या आएगा वो हम निकाल भी नहीं सकते डायरेक्टली. पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको बताना है. ये याद रखिए, अगर मैं सेपरेटली सोचता, क्या मतलब 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट. अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है. तो इन दोनों का डिफरेंस सम की जब हम बात करेंगे तब आप चेक करो, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव is not always positive, is not always negative. You cannot decide कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सम हमेशा ही पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो आप डायरेक्ट ये नहीं, इसको अलग अलग कंसीडर करके बता सकते. द मेथड गोज लाइक दिस. और इसके लिए पहले मैं आपको जर्नल अप्रोच बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थ्रू आउट यूज करने वाले हैं. Look at this expression, a sin x plus b cos x. A and b are your any real values. तो इस केस में आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. It will help me to convert the RHS only in terms of sin x or only in terms of cos x. That will again depend on the given question. वो इसका बी पार्ट में आएगा. तो अभी के लिए सिंपल जो मैंने रूल बताया है आप चेक करो. दिस इज a, 1 इज a here, और ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई है cos 100 डिग्री. तो इस तरह से कंपेयर करूं तो a is also 1, b is also 1. So what I am going to do, divide by root a square plus b square.
which is root 2. The most important step of this question. एंड यहाँ कोई और अप्रोच मुझे नहीं लगता जो आप लगा पाएंगे जो पॉसिबल हो. तो ये कंपलसरी स्टेप है. डिवाइड कर दिया रूट 2 से, बट थिंक लॉजिकली. बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना. अगर मैंने कहा रूट 2 से डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड तो मैं कर देता हूँ, ये इसको भी कर दिया एंड नेक्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर दिया, बट एट द सेम टाइम बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड. जिस चीज से डिवाइड करा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बेनिफिट, आई कैन राइट रूट 1 बाय रूट 2 एज, सिर्फ इस वैल्यू को देखो, 1 बाय रूट 2 को क्या मैं कॉस कितना लिख सकता हूं, कॉस 45 डिग्रीज. आप साइन 45 डिग्री भी लिख सकते थे, आपकी चॉइस थी. तो बट अगर मैंने इसको cos 45 लिखा है तो मैं इसे क्या यूज करूंगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइन. ये वाली वैल्यूज एज इट इज, मतलब साइन 100 डिग्रीज और ये नेक्स्ट क्या है, cos 100 डिग्रीज. कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड, करने से क्या बेनिफिट हुआ, क्यों किया गया होगा. सर फॉर्मूला. We have converted this into a standard formula. Note carefully. This is sin को पहले पढ़ लो चलो. Sin A cos B plus cos A sin B, which is a formula of sin साइन ए A प्लस बी. plus B. तो यही कहा था कि वो सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा साइन या कॉस में. तो अगर आप अब इसको ध्यान से देखें, मैंने इसे क्या लिख दिया, साइन 145 डिग्रीज. यस, आई एम इन सेकेंड क्वाड्रेंट. 145 डिग्रीज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, इसका मतलब y पॉजिटिव हो गया और जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका साइन हो गया पॉजिटिव. आपसे बट सिर्फ सर इतने, रूट 2 जो है हमने उसको पॉजिटिव कैसे लिया, किसे, रूट 2 को. सर वो अगर नेगेटिव होगा तो आंसर भी तो नेगेटिव आ सकता है ना सर. रूट 2 नेगेटिव हो सकता है. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या हो गया, रूट 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको तो कुछ सोचने का ही नहीं है. ये माइनस रूट 2 थोड़ी लिखा हुआ है, माइनस रूट 2 नेगेटिव होगा. रूट 2 की जब मैं बात करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर है, रूट 2 कितना होता है, isn't it 1.414 approximately. तो रूट 2 is always positive, तो complete product will be always positive. इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन को चेंज करके दिखाया है इन सिंगल टर्म ऑफ साइन. साइन की टर्म में मैंने पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया. इसीलिए अगर मैं इसके बी पार्ट को सॉल्व करूंगा, लेट मी कंसीडर कि मेरे को कॉस की टर्म में चेंज करना है. तो बी पार्ट का सेकंड पार्ट सोच के देखिए. आई एम वेटिंग. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पार्ट. टेक 1 minute. थिंक अबाउट दिस.
what should be my first step? Sir, root 3 square plus 1 square in the root, then multiply and divide it from the sign Yes. set. आप चेक करिए, ये 1 इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर वही a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप एक्सप्रेशन है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड एंड ऑफ कोर्स देन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई। तो आप चेक करिए, आप ऐसे लिख दो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, तो वाई टू राइट ओनली डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय root of a square plus b square, which Sir, simplifies to 2. only 2. So y would be root 3 by 2. 2 से डिवाइड अगर यहाँ दिखाया है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई पूरे में करना रहेगा, एंड यहाँ 1 by 2 कर दिया cos थीटा। अब क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, कॉस की टर्म में, तो कॉस की टर्म में फार्मूला तभी बनेगा, कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो दोनों कॉस कॉस लिखने चाहिए। इसका मतलब अगर ये ऑलरेडी साइन है, मैं इसे लिखने वाला हूं साइन 60. पाई बाय 3 और 60 डिग्रीज। और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ये होगा cos पाई बाय 3, आप चेक करके देख सकते हैं। अब ये पहले लिखा हो ये वाली टर्म या बाद में, हार्डली मैटर, फार्मूला क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, which is Sir, it would be pi by 6 cos pi by 6. pi by 6। चेक कर लो एक बार, cos 60 डिग्री कितना होता है, Half, sir. Actually, you must have got confused in sin 30 is half, so हाँ 30 चेक would इट be. आउट। तो रूट साइन 60 डिग्री अगर रूट 3 बाई 2 है, और आप फिर देखिए cos 60 डिग्री, और वो cos 60 डिग्री होता है 1 बाई 2। तो ये फाइनली फार्मूला किसकी टर्म में आ गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, विच इज cos a माइनस b। तो ये हो गया a, ये हो गया b, cos a माइनस b। सो जो क्वेश्चन मेरा दो अलग अलग टर्म्स में था, ये अलग अलग दो टर्म्स में था, इट इज combined and made in terms of only cosine। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और ये डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और भी कई क्वेश्चंस में और कंसेप्ट्स में हम आगे यूज करेंगे। Any doubt to anyone? Now this 25th question has I think 6 parts। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे डेरिवेटिव मुझे आगे चाहिए या इंटीग्रेशन, तो आपको इस तरह के प्रूविंग करने हैं। ए पार्ट तो बहुत सिंपल है, दे आर द डायरेक्ट फार्मूलाज। चेक दिस आउट, ए पार्ट, व्हेन आई लुक एट एलएचएस, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अगर एज अ फार्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तब तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फेस लॉट मैनी चैलेंजेस। मैंने कोई नई चीज नहीं करी है, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूलाज हैं, एक ये भी तो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, द फर्स्ट वन,
या सेकंड वन चलो कह लीजिए, एक ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, यू जस्ट रीअरेंज दी टर्म्स, ये -1 इधर आकर +1 हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डायरेक्टली है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट अगर बीच में माइनस आ जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए एज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म में भी लर्न दी फार्मूलाज। So then here we will use 2 sin square theta because it's 1 minus. अच्छा यहाँ माइनस है, यस यस सॉरी, ठीक है, वो माइनस वाला है तो अकॉर्डिंगली वो हमारा साइन स्क्वायर वाला लग के आ रहा है, ठीक है ठीक है, वो मैं थोड़ा प्लस में पता नहीं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा। बस अब आप क्या करेंगे, 2 से एक 2 कैंसल, एक साइन से साइन कैंसल, cos theta by sin theta, which is your required RHS. So hardly two-liner question. Provided formula कौन सा लगना है वो मुझे पता। Check out B part, LHS. Look at the symmetry और जो फार्मूलाज हमने अभी जस्ट देखे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एक साथ अगर मैं कर दूं और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मीन्स इन न्यूमरेटर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक साथ ले आइए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। और नीचे सिमेट्री से क्लियर है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड ये आ जाएगा प्लस साइन 2 थीटा। न्यूमरेटर में अगेन डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ये तो क्विकली 2 cos square. स्क्वायर थीटा और फिर साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वन माइनस कॉस वाला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर से साइन 2 थीटा का फार्मूला ये लग गया, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन 2 कॉस थीटा, यहां से 2 साइन थीटा, क्या बचा, वन कैन इजीली नोट, ये और ये कैंसल, 2 से 2 कैंसल, हेंस प्रूव्ड। तो नॉट डिफिकल्ट प्रूविंग, जस्ट दैट फर्स्ट स्टेप की एक सिमेट्री और फार्मूलाज मुझे याद हो। वेरी सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चंस बी पार्ट जैसे लिया है वो हाफ एंगल में भी पॉसिबल है, कैसे, चेक आउट सी पार्ट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट दैट यहां हाफ एंगल के फॉर्मूला यूज होंगे। तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द फर्स्ट 2 स्टेप हिंट्स। ये फर्स्ट एंड थर्ड कंबाइन करा, first and third combined in the denominator, and now 1 minus cos theta का फार्मूला, 1 minus cos theta, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला लिस्ट देख लेना, और साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आपने जो पिछले, प्लीज म्यूट योरसेल्फ,
हमने ये वाला फॉर्मूला किया है, लास्ट शीट को मैंने दोबारा खोला है, लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये, और व्हाट यू डू, जस्ट replace the angle theta by theta by 2, मतलब एंगल का हाफ कर दो बोथ द साइड्स। तो 1 प्लस एंगल 2 थीटा था, उसका हाफ कर दो, एंगल का हाफ कर दिया। तो so we have the formula for 1 plus cos theta as 2 cos square theta by 2। तो हाफ एंगल्स की टर्म में भी डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। हर बार अगर मैं ऐसे डिडक्ट करने लग गया, इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम, एंड रिमेंबर ईच सेकेंड काउंट्स, एवरी मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली गो फॉर, यहां 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड साइन थीटा का हाफ एंगल ये होता है। बस सिमिलर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉमन एंड सिंप्लीफाई। चेक आउट दिस लास्ट क्वेश्चन, टी पार्ट में look at LHS, cos theta by 1 plus sin theta. So there may be multiple ways to solve this question, but I am using complementary rule। ये मैं लिख सकता हूँ cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, और नीचे sin को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। y, अब मैं यहां पर लगाने वाला हूं, अगर इस पूरे पाई बाय 2 माइनस थीटा को मैं मान लेता x, तो ऊपर साइन x लिखा हुआ है, और उसका हाफ एंगल फार्मूला क्या दे देगा, 2 साइन x बाई 2, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ये हाफ कर दिया, इनटू cos x, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया। नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस कॉस एक्स, इस अगर पूरे को x मान लो तो 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इस एंगल का हाफ कर दीजिए। बस इसके बाद तो सिंपल है, एक 2 से 2 कैंसल, एक कॉस वाली टर्म कैंसल, साइन बाय कॉस बचेगा, और आप चेक कर सकते हैं वो ये ही बच रहा है, विच इज इक्वल टू RHS। आई हैव यूज अ वेरी सिंपल अप्रोच। हो सकता है पहला ही स्टेप मुश्किल लगे कि ये क्यों सोचा गया है, बट विथ प्रैक्टिस ओनली यू विल बी एबल टू गेट दिस। देयर इज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो, यू कैन ट्राई इन योर होमवर्क। कॉस थीटा को यूज कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 को लिख लो cos स्क्वायर ये इस 1 की बात कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला लिख लो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तीन टर्म्स हैं और तीनों के फार्मूलाज लिख लीजिए, एंड देन सिंप्लीफाई, लिटिल बिट लेंथियर, and then you will be able to get your required answer। So इसीलिए जो फर्स्ट वे मैंने बताया है, to understand that carefully, तो वो ज़्यादा easy in general रहता है। Mark your attendance quickly। So for your homework, only these two parts, बाकी पिछला काम कंप्लीट करेंगे। एक मिनट, ये भी वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, so optional if you want। So these 4 parts, mark your attendance and then you can leave the class।